In our last lecture, we had studied various deficiency symptoms that are developed due to the deficiency of various macronutrients mainly. And we studied lots of elements and major diseases that were developed due to the deficiency of these elements. And what was the conclusion? If we want to see the deficiency of a particular element, or what we can say multiple symptoms that are developed due to the deficiency of a particular or a single element. बहुत सारे symptoms develop हो जाते हैं एक elements की deficiency के कारण, और in other way we also can say one symptom is developed due to the deficiency of various elements. वाइस वर्सा हो गया ना कि एक एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, और एक सिम्टम के लिए भी बहुत सारे एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं if one element is deficient. So if we want to study the deficiency symptom very accurately, then what we have to do, we have to study them, what we have to do, we have to see these deficiency symptoms in all parts of the plants that are developed in roots, stems or leaves, whatever parts of plants are there. तो वहाँ पे different parts में एक particular elements की deficiency से जो भी symptoms develop होते हैं, that we have to study them carefully. उनको बहुत carefully हमने करना है, and then we have to compare them with the standard tables that are available. जो भी standard tables scientist के द्वारा available है, उनको उसके साथ compare करना है. Of course, it is a tedious task and it is a work of all bigger research organizations. हम कह सकते हैं, और plant breeders और scientists, they are all doing this, and that is why they are releasing the chart after looking very carefully or keenly to the plants. एक plants के अंदर जो भी symptoms develop हो रहे हैं ना deficiency और किसी भी element की कमी के कारण, तो वो scientists उनको बहुत closely study करते हैं, फिर उसके बाद वो release करते हैं और they prepare the chart. So it is a very careful or tedious task. So on that basis we can say कि there are what I want to tell you कि there are different plants, they respond differently to a same element. एक element की deficiencies और जो different deficiencies symptoms develop हो रहे हैं, तो there are different plants, वो भी अलग अलग ढंग से वो response करते हैं. तो ये तो था एक deficiency symptom. Now we come to the next part of this chapter. What is toxicity? Toxicity is also related to some maximum amount of the micronutrients mainly. So what is a toxicity? That we should know right now. Toxicity is the again symptoms developed due to excess of an element or micronutrient we can say. And I had already told you that if a particular micronutrient is deficient, then what can happen? Deficiency disease will occur. And if a particular specific micronutrient is a little bit more in amount, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा, then what can happen? It leads to toxicity. किसको करेगा? Toxicity means it is also a negative effect given to the plant. Plants में कुछ negative symptoms developed होंगे, and they will collectively will be called as toxicity occurring due to the excess of particular element. एक particular element की excess के कारण जो symptoms develop होंगे ना, and then they are leading to the toxicity. उसको हम क्या कहेंगे? Toxicity. तो toxicity is developed due to the maximum amount of what we can say थोड़े से ज़्यादा amount of micronutrient. That is why there is always an optimum range. ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना, optimum range और critical concentration क्या होगी of micronutrient, that should be in a particular specific amount will be there. A specific amount will be there. If this will be less, then what can happen? It will lead to the deficiency diseases. क्या हो जाएगा? Deficiency. And if it is more, then what will happen? If it is more in amount, then it will lead to the toxicity. ये क्या करेगा? टॉक्सिसिटी डेवलप करेगा. जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट में तो थोड़ा सा कम हो गया था तो डेफिशिएंसी, थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ था टॉक्सिसिटी नहीं डेवलप हुई थी. तो टॉक्सिसिटी कैसे होगी? if a particular amount is little bit more, and specifically in case of micronutrient we are talking about.
ठीक है। तो इसका एक एज ए रिजल्ट प्लांट पे क्या इफेक्ट होगा, एनी कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट, कैसे पता लगेगा कि इफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज इन एक्सेस, कोई भी एलिमेंट इफ इट इज इन एक्सेस इन प्लांट, किसी भी प्लांट में थोड़ा सा भी ज्यादा है तो प्लांट का वेट क्या हो जाएगा, इट विल रिड्यूसेस इट वेट बाय इट्स 10%, उसका 10% वेट लॉस हो जाएगा प्लांट का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब भी होगी ना तो इट विल रिड्यूसेस इट्स वेट बाय 10%, then only we can say that a particular element is in excess, कि एक एलिमेंट क्या है, एक्सेस में है। तो टॉक्सिसिटी के कारण what we are observing, toxicity lead to less weight of plants, और कितना, that is 10% near about 10% ऑफ इस प्लांट वेट, फ्रेश वेट जो भी होता है ना उसका ये कितना हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा प्लांट का वेट। तो हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कारण क्या हो गया है, व्हाट इज हैपनिंग, उसकी ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट के कारण और थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा होने के कारण प्लांट्स हैज़ रिड्यूसेस इट्स वेट। Toxicity level varies from plant to plant. So second point what we have to consider, toxicity varies from plant to plant. एक पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक्सेस के कारण क्या होगा, हर प्लांट में इसका जो लेवल होगा, सिम्टम्स होंगे, दे विल बी डिफरेंट, हर प्लांट में ये डिफरेंटली शो करेगी। एंड इफ ए पर्टिकुलर, इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू नो द टॉक्सिसिटी लेवल ड्यू टू एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की एक्सेस के कारण डिफरेंट प्लांट्स में जो भी टॉक्सिसिटी सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड होते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं एनालाइज करना। तो this is the third point, toxicity is difficult to analyze. And different elements show different effects, different toxic symptoms to the same plant or to the other plants, to the same or to the other plants। ये सब जो टॉक्सिक सिम्टम्स है ना, इनको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू दी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स तो दूर से ही नज़र आ जाते हैं, लेकिन टॉक्सिक्स जो होते हैं ना, दे आर डिफ़िकल्ट होते हैं एनालाइज करने के लिए, क्योंकि टॉक्सिक लेवल जो होता है ना हर प्लांट के लिए वेरी करता है। सब प्लांट का अपना अपना टॉक्सिक लेवल है। जैसे कि किसी प्लांट के लिए कुछ लेवल होगा, कुछ दूसरे प्लांट्स के लिए उसी एलिमेंट का दूसरा लेवल होगा। तो टॉक्सिक लेवल भी क्या करता है, वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। टॉक्सिक लेवल ऑफ एन एलिमेंट also varies from plant to plant। हर प्लांट में अपनी अपनी रिस्पॉन्स है, तो इसीलिए व्हाट वी कैन से द टॉक्सिसिटी इज डिफिकल्ट टू एनालाइज। मोरओवर देयर आर सम symptoms that are developed due to excess of a particular element, but actually they are showing the signs of deficiency symptom। तो उसका हम एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीज का। मैग्नीज का एक बेस्ट एग्जांपल वी कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रब इट एंड देन टेल यू व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द मैग्नीज टॉक्सिसिटी। क्या होता है मैग्नीज टॉक्सिसिटी में, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि बहुत सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के। ऑल्दो एलिमेंट्स होते भी हैं प्लांट्स के अंदर, लेकिन फिर भी उनकी कमी हो जाती है प्लांट्स में, जिसके कारण डेफिशिएंसी सिम्टम्स नज़र आते हैं। डेफिशिएंसी यानी कि कमी के कारण एलिमेंट की आते हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट डेफिशिएंसी सिम्टम, बट दे आर ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट की एक्सेस के कारण होते हैं। जैसे मैग्नीज मैंने आपको बताया, इट क्लोजली रिजेंबल्स विद मैग्नीशियम एंड आयरन। मैग्नीज जो है ना, इट कम्पीट्स
क्या करता है, उनको एब्जॉर्प्शन में किसकी, आयरन की एज वेल एज मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को होने नहीं देता। इफ ए पर्टिकुलर मैग्नीज इज इन एक्सेस अमाउंट, अगर ये प्लांट में एक्सेस यानी कि थोड़ा सा भी ज़्यादा अमाउंट में है ना, देन व्हाट विल इट डू, it inhibits the absorption of iron and magnesium from the soil। आयरन की और मैग्नीशियम की सॉइल में एब्जॉर्प्शन को होने से रोकता है, ठीक है, ये नहीं होने देता, तो inhibits their absorption, inhibits the absorption and moreover manganese also competes with magnesium। मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे एंजाइम का एक्टिवेटर है ना, जैसे मान लो ये एंजाइम है और इसकी ये जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पे पहले इफ मैग्नीशियम हैज़ टू ज्वाइन, मैग्नीशियम में जुड़ना होता है सो दैट इट कैन प्रोसीड फर्दर टू फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। लेकिन जब मैग्नीज आ जाता है ना, तो वो क्या करता है, कंपीट इससे करता है और इसको नहीं आगे आने देता, खुद जुड़ जाता है, ठीक है, एंड इट लीड्स टू द डेफिशिएंसी सिम्टम, जिसके कारण डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ड्यू टू मैग्नीज, although they are present in plant but manganese is not allowing them। moreover it also, मैग्नीज का एक और भी काम होता है, it inhibits the calcium translocation, inhibits the calcium translocation। जैसे कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है प्लांट का, तो उनको भी एब्जॉर्ब होकर और उसकी भी ट्रांसलोकेशन में ये क्या करेगा, इंटरप्शन करेगा, उनको भी, इसको भी इनिबिट करेगा सो दैट इट कैन नॉट बी ट्रांसलोकेटेड। तो इनिबिट्स द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। तो वॉट एवर सिम्टम्स आर डेवलपिंग इन द प्लांट्स, एक्चुअल में सिम्टम्स डेफिशिएंसी के कौन से डेवलप हो जाएंगे, आयरन की डेफिशिएंसी से, ठीक है, or what we can say deficiency due to the magnesium or due to the calcium। so these all they are forming the deficiency symptoms, क्योंकि ये इसमें काम ही नहीं कर रहे, even they are present in their proper amount in the plant because इनके पीछे क्या है, मैग्नीज is in excess amount, मैग्नीज किस अमाउंट में है, एक्सेस में, और वो इंटरप्शन कर रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट डज इट concluding, if a particular plant is showing the symptoms due to excess of manganese or due to the deficiency of these particular elements, actually they are due to the toxicity of manganese। किसके कारण है, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के कारण है। तो इस तरह से वी कैन से ऑल डिफरेंट प्लांट्स दे आर शोइंग सच काइंड ऑफ सिम्टम्स, इस तरह के सिम्टम्स को डेवलप करते हैं। एक्चुअली डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, लेकिन होते क्या हैं, टॉक्सिसिटी के कारण होते हैं और एक्सेस ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट के कारण। दैट वी हैव प्रूव विद दिस हेल्प ऑफ दिस मैग्नीज। सो दिस इज रिगार्डिंग द टॉक्सिसिटी। नाउ वी कम टू दी और गार्डनर, whatever plant breeder है, gardener, they should accurately know actually what are the symptoms or why the symptoms are developing, either they are due to deficiency or due to excess of a particular element। तो ये सब किसमें, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को ये सब कोर्स में बताया ही जाता है और वेरी इफेक्टिवली दे आर डूइंग ऑल दिस प्रोसेसेस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। ये तो हम पार्ट कुछ पढ़ भी चुके हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, चैप्टर 11 में, लेकिन एक क्विक रिवीजन करते हैं। एवरीथिंग इज सेम दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, लेकिन फिर भी हम इस लेसन के अकॉर्डिंगली वी अगेन वी शुड हैव ए रिवीजन।